Dadasaheb Phalke Award, feature films, non-feature films, best writing in cinema, and the most film-friendly state. These are the 5 categories in which awards are given, as you all know. The National Film Awards aim at encouraging the production of films of aesthetic and technical excellence and social relevance, contributing to the understanding and appreciation of cultures of different regions in the country in cinematic form, and therefore also promoting integration and unity of the country. The awards are being given in 28 categories in the feature film section, 22 categories in non-feature film section, and 1 category in best writing cinema. Best writing on cinema. This year, there were 305 feature films received as entries in 30 languages. In the non-feature film category, 148 films in 20 languages from all over the country were received. Films in 15 languages, other than those specified in the 8th schedule of the Constitution, were received as entries. 24 books and 5 film critics competed for the Best Writing on Cinema Awards. The jury for Best Writing on Cinema Awards was led by Mr. Anant Vijay. The jury for non-feature films was chaired by award-winning filmmaker Mr. Chitraj Singh. The feature film section of National Film Awards jury was headed by eminent producer-director Shri Vipul Shah. As Mr. Vipul Shah had to leave in the afternoon, we have well-known cinematographer Mr. Dharam Gulati from the jury who will be announcing the awards on his behalf. Mr. Dharam Gulati was also the regional panel chairperson of South 2, which screened films from Karnataka, Andhra Pradesh and Telangana. The awards in the feature film category are selected by a 2-tier jury, regional and central. 5 regional panels, East, North, South, South 2 have 5 members each, whose chairpersons are also members of the central jury. The central jury has 11 members, including the chairperson. The jury for non-feature films has 7 members, including chairperson, whereas jury on best writing on cinema has 3 members, including the chairperson. The jury viewed the films in New Delhi over a period of 1 month. Just to highlight the diversity of our beautiful country and the entries award in various languages, I would like to share that in addition to the Schedule 8 languages, we have also received entries in languages, in feature films, in languages of Dimasa, Gaddi, Gojri, Kanyar, Kandi, Konkani, Maithili, Moran, Rapha, Rajbongi, Tulu, Romgemi, and in the non-feature film section we had Bundelkhandi, Dangi, Karbi, and there were 2 films, one in a silent category, one was a silent film and one film did not have any dialogue. So before I invite the chairpersons of the 3 juries, we also have the announcement to make for the most film-friendly state. I will, on behalf of the chairman of the most film-friendly state jury, Mr. Priyadarshan, who could not be here available here today, and 2 members of the jury, Mr. G.P. Vijay Kumar and Mr. Amit Sharma. I will be making the announcement with regards to the most film-friendly state in the country. The jury evaluated applications received from 13 states of the country. In the most film-friendly state, special mention has been received
by the states of Uttarakhand and Uttar Pradesh, and a certificate each will be given to them. The award for the most film-friendly state goes to Madhya Pradesh, who will be given a Rajat Kamal and a certificate. जूरी सदस्य अलका साहनी और धनंजय गोविंद के बिहाफ पर आप सबसे बात कर रहा हूँ। हम तीनों ने मिलकर कई सारी पुस्तकें पढ़ी, 21 जैसा कि मैम ने बताया, और जो बेस्ट क्रिटिक के अवार्ड के लिए एंट्रीज आई थी उनको देखा, और हम तीनों ने यूनानिमसली ये फैसला लिया, इस निर्णय पर पहुँचे कि बेस्ट राइटिंग में बेस्ट क्रिटिक का अवार्ड इस बार किसी को नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि हम तीनों को कोई भी एंट्री स्तरीय नहीं लगा, और इस लिहाज से इस बार सखेत सूचित करना पड़ रहा है कि बेस्ट क्रिटिक का अवार्ड हम लोग किसी को नहीं दे पाए। वजह ये हो सकती है कि ये 2020 का पुरस्कार है और उस वक्त कोरोना अपने पीक पर रहा होगा, तो उस वजह से एंट्रीज नहीं आई। और अब हम बेस्ट राइटिंग ऑन सिनेमा बुक्स पर आते हैं, और सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट, जिसको स्पेशल मेंशन के नाम से भी जानते हैं, उसकी घोषणा मैं करता हूँ। पहला सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट MTA पुस्तकम मलयालम अनूप रामकृष्णन, मलयालम मनोरमा इज द पब्लिशर। और दूसरा कालीवाइन कालीरा सिनेमा ओडिया सूर्यदेव पक्षीधर प्रकाशने, इनको भी सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट देने की अनुशंसा हम लोगों ने की और उसकी घोषणा कर रहे हैं। और एक बात मैं बीच में ये सिर्फ बताना चाहता हूँ कि हमारे पास जो पुस्तकें 21 आई थी उसमें तमाम भारतीय भाषाओं की पुस्तकें थी, और जूरी के सदस्यों ने कुछ अपने मानदंड तय किए, कुछ तो डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल के मानदंड हैं, और कुछ हम लोगों ने ये भी किया कि कुछ ऐसी भाषाओं का चयन भी किया जाए जिससे वहाँ के लेखकों का उत्साहवर्धन हो और वहाँ की फिल्मों के बारे में भी देश के दूसरे हिस्से को पता चल सके। तो ये काली पाइने कालीरा सिनेमा एक ऐसी ही किताब है जिसमें ओडिया क्लासिक्स के बारे में उन्होंने लिखा है। और अब समय हो गया है अवार्ड फॉर बेस्ट बुक ऑन सिनेमा। ये किताब द फर्स्ट लेडी ऑफ इंडियन सिनेमा पर है। किताब का नाम है द लॉन्गेस्ट किस, इंग्लिश में है। ईश्वर देसाई ने इसको लिखा है और वेस्टलैंड पब्लिकेशन ने इसको प्रकाशित किया है। तो हमारी जूरी ने ये तय किया कि इनको ही दिया जाए, क्योंकि ये पुस्तक 10 वर्षों के रिसर्च और देविका रानी के खुद के लिखे हुए 400 पत्रों पर आधारित है, और ये किताब अपने आप में फ्यूचर जनरेशन के लिए एक रेफरेंस के तौर पर काम आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मेरे साथ जूरी में थे श्री M.K. भास्कर राव, श्री शिलादित्य सेन, श्री दिलीप सूद, श्री नकुल देव, श्री योगेश कुलकर्णी और श्री सत्य प्रकाश उपाध्याय। हमने तमाम फिल्में देखी और उसके बाद जो जिस निष्कर्ष पर हम पहुँचे वो है, सबसे पहले बेस्ट नरेशन वॉइस ओवर अवार्ड गोज टू शोभा थरूर श्रीनिवासन फॉर फिल्म रैप्सोडी ऑफ रेन्स, मॉनसून्स ऑफ केरला, रजत कमल and ₹50,000. Best Music Direction Award goes to Shri Vishal Bharadwaj for 1232 kilometers मरेंगे तो वहीं जाकर, रजत कमल 50,000. Best Editing Award goes to Anadi Ethle for Borderlands, Rajat Kamal and ₹50,000. Best on-location sound recordist goes to film Jadui Jungle. On-location sound recordist Sandeep Bhati and Pradeep Lekhwar.
Best Audiography Award goes to Re-Recorded Final Mix Track Ajit Singh Rathore for Pearl of the Desert from Rajasthan. Best Cinematography Award goes to Nikhil S. Praveen for Shabdikul Kallappa, a Malayalam film. Rajat Kamal and 50,000. Best Direction goes to Oh That's Bhanu, a documentary in English, Tamil, Malayalam and Hindi. Swarna Kamal. Best Film on Family Values goes to Kumkum Arjan, producer Studio Filmy Monks, director Abhijit Arvind Dalvi. Best Short Fiction Film. Best Short Fiction Film goes to Kachi Chinutu from Assam. Award goes to Khanjan Kishore Nath, who is producer and director both. A special jury award goes to film Admitted, director Ojasvi Sharma, Rajat Kamal and ₹1 lakh. Best investigative film goes to The Savior, Brigadier Preetham Singh in Punjabi. Producer Akal Productions, director Dr. Paramjeet Singh Kattu. Best exploration/adventure film to include sports goes to Wheeling the Ball in English and Hindi. In English and Hindi. Producer Film Division, director Mukesh Sharma. Best educational film goes to Dreaming of Words, Malayalam, producer and director Nandan. Best film on social issues is shared by two films. One is Justice Delayed but Delivered in Hindi. Producer Mandeep Chauhan, director Kamakhya Narayan Singh. And the other film is Three Sisters. Producer Ratnaboli Rai, director Putul Rafe Mahmood. Best environment film goes to Mana Arumanu, producer Directorate Manas National Park and Aranyak, director Deep Guyan. Best promotional film goes to Surmounting Challenges, producer Delhi Metro Rail Corporation Limited, director Satish Pandey. Best Science and Technology Film, On the Brink Season 2, Bats, producer The Gaia People, director Akanksha Sood Singh. Best Arts and Culture Film goes to Nadada Navneet, producer Department of Information Public Relations, Government of Karnataka, director Girish Kasarwali. Best Biographical Film goes to Pabung Syam, producer Film Division, director Pavan Kumar. Best Ethnographic Film goes to Mandal Ke Bol, producer Madhya Pradesh Tribal Museum, Bhopal, director Rajendra Changle. Best Debut Non-Feature Film of a Director. Film is Paraya, producer is MIT School of Film and Television, Pune, and director is Vishesh Iyer. Best Non-Feature Film award goes to Testimony of Anna. Producer and director Sachin Dheeraj Mundigonda, Swarna Kamal and ₹1,50,000.
That is all, my friends. I will now request Mr. Gaurav Gulati to announce the Feature Film Awards. ये 2 tier सिस्टम क्या होता है? हमारे 5 जोन हैं जहाँ से फिल्में आती हैं, उनको हमने डिवाइड किया हुआ है अलग अलग लैंग्वेज के हिसाब से। तो जो चेयरमैन जो होता है वो एक न्यूट्रल होता है और एक मेंबर उसमें और न्यूट्रल होता है। बाकी 3 लोग जो होते हैं जिस लैंग्वेज की फिल्में हैं उन्हीं में से आते हैं। So this is how it is, and I will name people who were there this time. नॉर्थ पैनल में कार्तिक राजा थे चेयरपर्सन, अरविंद सिंह मेंबर, भरत सिंह शितौले, कोकिल बोरा, विनोद अनुपम। ये नॉर्थ पैनल का था। ईस्ट पैनल में GS भास्कर चेयरमैन थे, रंजना दत्ता मेंबर थी, श्रीकांत गौतम, KG दास। और वेस्ट पैनल में श्रीलेखा मुखर्जी चेयरपर्सन थी, अभिषेक शाह मेंबर, नीलाव कौल, प्रमोद पवार, राधेश्याम पेपलवाल। ये वेस्ट पैनल था। साउथ 1 पैनल रवि खेमू चेयरपर्सन थे, प्रमोद परसवाने मेंबर थे, अनुपमा सुब्रमण्यन, संजीव प्रजवर और विष्णु मोहन ये मेंबर थे। और साउथ 2 पैनल में मैं चेयरपर्सन था और धनराज तेजस, नागराज कोटे, मंजुनाथ और जयदीप घोष ये मेंबर थे। और उसके बाद में हमने जो हमारे पास कुछ टोटल कुछ 295 फिल्म 303 थी, उसमें कुछ टेक्निकल उस पर थोड़ा सा उनको रिजेक्ट हो गया और 295 फिल्में थी हमारे पास में। उसमें से 66 फिल्म जो हैं वो आगे आई हमारे मेन सेंट्रल जूरी में। अब सेंट्रल जूरी में कौन कौन थे? जो 5 चेयरमैन होते हैं, दे आर ऑलरेडी देयर एंड 5 न्यू मेंबर्स कम इन एंड द चेयरमैन कम्स इन। तो चेयरमैन विपुल शाह थे, वो उनका कुछ शूट शुरू हो रहा है कल से, तो वो चले गए आज सुबह। तो चेयरपर्सन और विपुल शाह, कार्तिक राजा, रवि केमू, धर्म गुलाटी, GS भास्कर, श्रीलेखा मुखर्जी, हंगा दुराई, विजय कंपी, निशिगंधा वार्ड, संजीव रतन और DN आदित्य। सबसे पहले मैं स्पेशल जूरी मेंशन का नाम दूंगा, जिसमें एक मैडम ने से बताया लैंग्वेज है दिमासा, उसकी एक फिल्म है सैमफोर और उनकी एक्ट्रेस है एमी बरुआ, उनको दिया जाता है। सेकेंड स्पेशल जूरी मेंशन इज वंतु, मलयालम फिल्म, डायरेक्टर हैं काव्या प्रकाश। जून, सिद्धार्थ मेनन, मराठी फिल्म है ये। घोड़ाकाठ और अवांछित ये दोनों फिल्मों में एक किशोर कदम मराठी एक्टर हैं और बहुत अच्छा काम किया, उनको दिया जाता है। तुलसीदास जूनियर हिंदी फिल्में, उनके एक चाइल्ड आर्टिस्ट हैं वरुण बुद्धादेव। ये जूरी मेंशन के हमारे 5 कंटेंडर थे। नाउ द बेस्ट फीचर फिल्म इन ईच ऑफ द लैंग्वेजेस अदर देन दोज स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल 8th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, उसमें रजत कमल दिया जाता है और 1 लाख का प्राइज दिया जाता है। इन सब फिल्मों को जो मैं अनाउंस करूंगा अभी, दैट्स द अमाउंट एंड द रजत कमल। बेस्ट हरियाणवी फिल्म दादा लक्ष्मी, प्रोड्यूसर अनहाड़ स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड, डायरेक्टर यशपाल शर्मा। बेस्ट दिमासा फिल्म सैमफोर, प्रोड्यूसर आईमी बरुआ, प्रोडक्शन सोसाइटी, डायरेक्टर आईमी बरुआ। बेस्ट तुलु फिल्म जीती गई, प्रोड्यूसर AR प्रोडक्शंस, डायरेक्टर संतोष माडा। बेस्ट फीचर फिल्म इन ईच ऑफ द लैंग्वेज स्पेसिफाइड द शेड्यूल 8 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। The best Telugu film. The film name is Color Photo. Producer is Amarta Production. Director is Angirakula Sandeep Raj. The best Tamil film. Shivaranjaniyam Innum Silla Pangalam. Producer Hamsa Pictures. Director Vasant S. Pai. Best Malayalam film. Tenkala Yuva Nischayam. The English translation is Engagement on Monday. I might be not pronouncing it rightly. Please excuse me for that. These are little tongue twisters. The producer is Pushkar Films. Director Prasanna Satyanath Hegde. Best Marathi film, Gosta Eka Paithanachi, Tale of a Paithani. Producer Planet Marathi. Director Shantanu Ganesh Rode. Best Kannada film, Dolu. Producer Vadiyar Movies, Director Sagar Purani. Best Hindi film, Tulsidas Junior,
प्रोड्यूसर आशुतोष गवारकर प्रोडक्शंस प्राइवेट लिमिटेड, डायरेक्टर मृदुल तुलसीदास। ये उनका अपना खुद का ही फिल्म है, एक्चुअली खुद लिखा है, उनकी खुद की कहानी है। बेस्ट बंगाली फिल्म अभिजात्री, प्रोड्यूसर GMB फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड, डायरेक्टर शुभ्रजीत मित्रा। बेस्ट असमी फिल्म ब्रिज, प्रोड्यूसर सविता देवी, डायरेक्टर कृपाल कलिता। बेस्ट एक्शन डायरेक्शन अवार्ड स्टंट कोरियोग्राफी अयप्पनम कोशियम, स्टंट कोरियोग्राफी goes to Rajashekar, Mafia Sasi and Supreme Singer. बेस्ट कोरियोग्राफी नाट्यम, इसे तेलुगु फिल्म, कोरियोग्राफर है संध्या राजू। बेस्ट लिरिक्स साइना, हिंदी फिल्म, लिरिसिस्ट हैं मनोज मुंतशिर। बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन आला वैकुंठपुरमल्लू, म्यूजिक डायरेक्टर थमन S। और इसमें बैकग्राउंड स्कोर के लिए अलग होता है, तो बैकग्राउंड ये सॉन्ग्स के लिए आला इसको मिला है, आला वैकुंठपुरमल्लू। और म्यूजिक डायरेक्टर है सुराराय पोट्रू, GV प्रकाश कुमार, दैट इज द म्यूजिक। बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट नाट्यम, मेकअप आर्टिस्ट इज TV रामबाबू। बेस्ट डिजाइनर कॉस्ट्यूम डिजाइनर, फिल्म का तानाजी द अनसंग वॉरियर, कॉस्ट्यूम डिजाइनर हैं नचिकेत बारवे एंड महेश शिरला। बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन कपेला, मलयालम फिल्म है, प्रोडक्शन डिजाइन अनीस नादोड़ी। बेस्ट एडिटिंग शिवरंजनियम इन्नम सिला पैंगलम, एडिटर श्रीकार प्रसाद। बेस्ट ऑडियोग्राफी सॉरी, इसमें भी 3 अवार्ड हैं। इट गोज द लोकेशन साउंड गोज टू डोलू, साउंड डिजाइनर, अच्छा ये लोकेशन साउंड इज डोलू एंड द रिकॉर्डिस्ट इज जॉबिन जैन। देन साउंड डिजाइनर अवार्ड गोज टू अनमोल भावे फॉर द फिल्म मीस बसंत राव। एंड re-recordist and final mix track goes to Vishnu Govind and Shri Shankar for the film Malik. It's a Malayalam film. Best screenplay Surarai Podru, screenplay writer हैं शालिनी उषा नैयर and Sudha Kongara. And the dialogue goes to Mandela, Tamil film. The dialogue writer हैं Madone Ashwin. बेस्ट सिनेमाटोग्राफी अवार्ड गोज टू अभिजात्री और कैमरामैन हैं सुप्रतिम भोल। बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर अयप्पनम कोशियम, सिंगर नंचम्मा। बेस्ट प्लेबैक मेल, फिल्म इज मिस वसंतराव, सिंगर इज राहुल देश पांडे। बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट दैट इज बीइंग शेयर्ड अमंग 3 actually. There is a film called Marathi film called Tak Tak, and the child artist from that film is Anish Mangesh Gosavi. And there is another film called Sumi, that's also Marathi film, and there are 2 one boy and 1 girl. And the name is Akanksha Pingle and Divyesh Indulkar. Best supporting actress goes to Shivaranjaniyam Innam Seda Pangalam. Supporting actress Lakshmi Priya Chandra Mauli. Best supporting actor goes to Ayappanam Koshiyam, Malayalam film. Supporting actor goes to Biju Menon. Best actress is Surarai Potru, actress Aparna Balamurli. Best actor, now that is a big award and that's also being shared with 2 people. Surya for Surarai Potru and Ajay Devgan for Tanaji the Unsung Warrior. Best direction, it goes to Ayappanam Koshiyam. Director is Sachidandan A.R. Unfortunately, I think this director is no more. I think he died some time back. Best children film goes to Sumi. Producer is Harshal Kamath Entertainment. Director is Amol Basant Gole. And the best film on environment, conservation, preservation goes to Tale Danda. It's a Kannada film. Producer is Rupanidhi Creations and director is Praveen Karupkar. And the best film on social issues goes to Funeral. Producer is Before After Entertainment and director is Vivek Dubey. Award for the best popular film providing wholesome entertainment goes to Tanaji the Unsung Hero
The producer is Ajay Devgan Films and director is Om Rao. Indira Gandhi Award for the best debut film by director goes to Mandela, that's a Tamil film. Producer is Y Not Studios and director is Matone Ashwin. And the best feature film, that goes to Surarai Portru. Producer 2D Entertainment Private Limited, director Sudha Gongara. That's all, my friends. भारतीय भाषाओं की 2 पुस्तकों को हमने सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट दिया है, ओडिया को और एक मलयालम को। तो इसलिए आपका प्रश्न थोड़ा सा ये होता है कि पुस्तक को पुरस्कार नहीं मिला, सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट 2 को मिला, दोनों भारतीय भाषा की ही पुस्तक। इस सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट है अवार्ड वाली तो नहीं, ये आवश्यक नहीं है कि भारतीय भाषा को मिले। कई बार भारतीय भाषाओं को भी मिलता है, कई बार अंग्रेजी को भी मिलता है। अगर आप पूरा इतिहास उठा के देखें तो 2017 में जब मैं सिलेक्शन कमेटी में था तब हमने एक मणिपुर की पुस्तक को दिया, मणिपुरी लैंग्वेज में। तो वो डिपेंडिंग अपॉन द मेरिट ऑफ द बुक, वो हम भाषा के आधार पर पुरस्कार नहीं देते, हम कंटेंट के आधार पर। എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. കോവിഡിൻ്റെ മൂർധന്യാവസ്ഥയിലുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിലുള്ള സിനിമകളാണ് ഞങ്ങൾ ഇത്തവണ ജൂറി കണ്ടത്. 2020 സിനിമകളാണ്. അപ്പോൾ കൂടുതലും ഒരുപാട് റെസ്ട്രിക്ഷൻസും ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾക്കിടയിൽ നിന്ന് ചിത്രീകരിച്ച സിനിമകളാണ്. അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും വളരെയധികം ക്വാളിറ്റിയുള്ള സിനിമകളാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും മലയാളത്തിൽ നിന്നും തമിഴിൽ നിന്നും മറാഠിയിൽ നിന്നുമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നല്ല സിനിമകൾ ഇത്തവണ വന്നത്. ഏകദേശം 305 സിനിമകളിൽ നിന്നും ആദ്യത്തെ 5 പാനലുകൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത് സെൻട്രൽ പാനലിലേക്ക്, ഞങ്ങളുടെ പാനലിലേക്ക് വന്ന 66 സിനിമകളാണ്. 66 സിനിമകളാണ് ഞങ്ങൾ ഏകദേശം 2 ആഴ്ച കൊണ്ട് കണ്ടു തീർത്തത്. അപ്പോൾ അതിലേറ്റവും लोग एम्बिशियस भी होते हैं, भेज देते हैं फिल्में, बट हमको हमारी ड्यूटी है, हमको बुलाया गया इसीलिए तो हम सारी फिल्में देखते हैं और मेरिट के ऊपर जो अच्छी फिल्में होती हैं वो जोनल से आगे जाती हैं, फिर वो सेंट्रल जूरी देखती है, उसमें से फिर शॉर्ट लिस्टिंग होती है, ये फाइनल लिस्ट होती है। दैट इज़ द प्रोसेस। तो अब मैं आपको विषय अभी बता ही रहा था मैं कि हम दिन में कभी हमने 6 फिल्में देखी हैं, कभी 5 फिल्में देखी हैं, और सुबह 8 बजे से शुरू करते थे, रात के 10 बजे तक। मतलब ये हमारा रूटीन होता है। तो होता है यू गेट टायर्ड, मतलब कभी कभी तो इतना हो गया कि आंखें ब्लर होने लगी, सब टाइटल पढ़ के परेशान हो गए। तो कई बार क्या होता है कि प्रोड्यूसर जो है ना वो ध्यान नहीं देते, उनकी जो फिल्में भेजते हैं सब टाइटल वेरी स्मॉल, तो हमको स्ट्रेन होता है जब हम देखते हैं। और जब हम एक दिन में 6 फिल्में देख रहे हैं तो ऑब्वियसली उसका कहीं तो असर होता है। तो इसलिए फिर हमको ये होता है कि नहीं यार हम बस करो, इसके बाद मेंटल फटीग ज़्यादा हो गया, तो उससे क्या होता है उसका असेसमेंट पर भी असर पड़ता है। तो अगर आपका दिमाग नहीं काम कर रहा है तो आप क्यों देखेंगे फिल्म, तो हम फिल्म बंद कर देते हैं, भैया ये आधी फिल्म आई देख लो, आधी फिल्म देख लो। सो दैट्स द वे इट गोज। तो है अभी मेहनत का काम है तो करना है तो करना है, और हमारा पैशन भी है, तो हम तो चाहते हैं कि हमको भी बहुत सालों से देखा नॉर्थ ईस्ट में बहुत अच्छी फिल्में बनती हैं, बहुत अच्छी फिल्म। मैं अभी मिफ की जूरी में भी था और वहाँ पे नॉन फिक्शन में मणिपुरी फिल्में बड़ी अच्छी थी। एक अपना शिलोंग से अपना बोडो में एक लैंग्वेज उसमें थी, वो भी फिल्म आई हुई थी अच्छी। तो हैं फिल्में हैं अच्छी आती हैं उसमें। देखिए उसमें कल्चरल भी हैं, सोशल इशू बेस भी हैं, थ्रिलर भी हैं, और अब जैसे कमर्शियल फिल्में होती हैं वो भी हैं, लव स्टोरीज़ भी हैं, सोशल इशूज़ पे बहुत फिल्में हैं। इनफैक्ट कोविड पे भी कुछ फिल्में थी, लोगों ने बनाई हैं फिल्म कोविड के सब्जेक्ट पे। जैसे ये तुल्लू फिल्म जहाँ पे है तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है उसकी। एक बाप है बेचारा, आपने सुना होगा एक वो जापान में हमारे कुछ सेलर फंस गए थे वहाँ, अब वो उनका बेटा वहाँ फंसा हुआ, उसकी शादी है, वो आ नहीं पा रहे, वहाँ जापान में उनका शिप डूब गया और वहाँ वो क्वारंटाइन हो रहा है, और यहाँ उसकी बेचारे की शादी टूट जाती है। शादी टूटने के बाद में उसको मैसेज मिलता है, इंडियन एम्बेसी ने उनको भेज रहे हैं। तो फिल्म मेकर है, उसने उस सब्जेक्ट को कितने अच्छे से डील किया, वेदर ही इज़ बीन एबल टू प्रेजेंट इट प्रॉपरली और नॉट, वेदर ही इज सक्सेसफुल और ही इज फेल्ड टू डू। फिर उसमें आती है टेक्निकलिटीज़, बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ हैं, सिनेमाटोग्राफी है, साउंड है, एडिटिंग है, हमको तो हर चीज़ चेक करनी पड़ती है।
जब हम फिल्म देखते हैं तो हमारा दिमाग एक भी नहीं चलता, हर डिपार्टमेंट को हम चेक कर लेते हैं। उसके बाद फिर हमको लगता है ओवरऑल कि वेदर ही डन इट, जो कंटेंट था उसको अच्छे से कह पाया कि नहीं कह पाया। अगर कह पाया तो उसके हिसाब से मार्किंग मिलती, वो आगे आती है। सर जी, आपसे मैं बस इतना जानना चाहते हैं कि आपने कहा कि हम बहुत ज़्यादा लोड रहते हैं फिल्म देखने में, कुछ आधी आज देखते हैं, आधी कल देखते हैं, तो इस वजह से कोई अच्छी फिल्म जो है वो कहीं छूट तो नहीं जाती? नहीं, वो हमको जैसे ही लगता है ना कि भैया ये कुछ जस्टिस नहीं कर पाएंगे तो हम उसको वहीं से छोड़ देते हैं, आधा देख के छोड़ देते हैं, अगले दिन फ्रेश आके देखते हैं। होता है, देखिए हम मेंटल फटीग, हमको आप सोचिए अगर एक फिल्म में कितने डिपार्टमेंट है और हम जब फिल्म देख रहे हैं हर डिपार्टमेंट को नोट कर रहे हैं। आप फिल्म के क्रेडिट्स देखते हैं ना, कितने लंबे क्रेडिट्स होते हैं, तो वो जितने भी क्रेडिट्स हैं हम हर चीज़ को देख रहे हैं, उसका बैकग्राउंड म्यूजिक देख रहे हैं, साउंड रिकॉर्डिंग भी देख रहे हैं, एडिटिंग भी देख रहे हैं, कैमरा भी देख रहे हैं, डायलॉग भी देख रहे हैं, परफॉर्मेंस भी देख रहे हैं। तो हमको फोकस बहुत करना पड़ता है। और उसके बावजूद अब क्या होता है कि लैंग्वेज की फिल्में, अब उसमें सबटाइटल भी पढ़ने पड़ते हैं, तो थोड़ा सा भी आपका ध्यान हटा तो वो कहते हैं ना, ध्यान हटा और दुर्घटना हुई, तो ये वही वाला मामला है। तो कितने दिनों से सर आप मैं 32 दिन से अभी नहीं, कितने सालों से आप जूरी में? मैं लास्ट जूरी में था, आई थिंक 63rd में। हाँ, तो उसके बाद मैं अभी आया हूँ। बीच में उन्होंने बुलाया था, बट मेरी अपनी शूटिंग चल रही थी तो मैं आ ही नहीं पाया। तो कभी 32 दिन आपने कंटिन्यू देखा, इसमें कभी लगता है कि हरासमेंट हो जाती है? नहीं, हरासमेंट नहीं लगती। देखिए मैं बताना कि हम देखिए नहीं टेंशन नहीं, वो थोड़ा मेंटल फटीग रहता है, वो ठीक है। क्योंकि देखिए हम जब शूटिंग भी करते हैं ना, हमारा शेड्यूल जब बनता है, हमारा 40 दिन 50 दिन का शेड्यूल बनता है, तो सुबह से लेकर वहाँ तो 7 बजे से काम शुरू होता है। जब शूटिंग का शेड्यूल होता है, वो सुबह जब आउटडोर में जाते हैं, वो 7 बजे से लेकर 12 बजे तक समझ लीजिए हम काम करते हैं। 5-6 घंटे की नींद मिलती है सिर्फ। और ये 40 दिन 50 दिन 60 दिन डिपेंड करता है कितनी बड़ी फिल्म है, तो ये हमारा काम ही है। तो वी आर यूज्ड टू इट, तो उसमें कुछ ऐसा नहीं है। और हमको अच्छा लगता है फिल्में देखना, हम तो आइस लाइन में है तो फिल्म देखेंगे और क्या करना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। Actually, this is a two-tier selection. First, 5 families there, east, west, then north, then south 1, south 2. Totally, I think 305 films received. From there, they are selected 66 films for the final jury, and we saw all the films in around 13 days. Then we come to a conclusion for this awards now announced. Because of this COVID situation, most of the films they shoot in a different situation, but some of the films are very good. We are selected from the good films. Among the good films, we both all of us in a combined conclusion.